Hello everyone. So in this session we'll discuss about the immunization. Okay. Immunization is also known as the vaccination. Okay. So immunization is a process of artificially inducing immunity or providing protection from disease condition or against the disease condition. Okay. So it is a process when we are introducing the artificially we are inducing the immunity in a newborn because the at the time of the birth, the newborn baby immunity is very weak because the baby will get the immunity from the mother in a womb time. Okay, and at the time of the birth, baby having a very small amount of immunity that is called the innate immunity. Okay, so this is very important. We have to protect the baby from different kind of disease conditions. So by introducing the immunization or the by introducing the any kind of the vaccine in the human body on the inside of the baby body through inducing the immunity so that the baby body will protect themselves to different kind of disease conditions. Okay, now the active immunization, there are two type of immunization: active immunization and the passive immunization. Okay, so first one is the active immunization. Active immunization, it is a process where we are stimulating the body to produce the antibody and other immune response through administration of the vaccine or toxide. So when in active immunization, we are actually introduce some vaccine inside of the baby body so that the baby own immune system are stimulated and they can be produce some antibodies. Okay, then the passive immunization. Passive immunization means it is a provision of the temporary immunity by administration of performing antibodies derived from the human or animals. Okay, so in the passive immunization, actually is a temporary basis immunization. Okay, not a prolonged duration of immunization. Is a means temporary basis immunization in that we have administered the some antibodies. Okay, इनका क्या होता है एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपकी प्रोलॉन्ग हो लाइफ के लिए नहीं है ठीक है इसका फिक्स टाइम ड्यूरेशन है ओके and it will be derived from the human or the animals. Okay, now the process of generating of the immunity after vaccination. Now we will discuss about what will be happen when the when we are introducing the vaccine inside of the newborn baby body. Okay, so first is the primary response. First आपका primary response when a antigen is administered for the first time to an animal or the human who has never been exposed to it. There is a latent period of induction of 3 to 10 days before antibodies appear in the blood. Okay, so जब हम बेबीज को फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन हम उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन के थ्रू ठीक है तो क्या चाहे हम एनिमल्स में करें क्योंकि आपको पता होगा ड्रग्स या वैक्सीन पहले नहीं होती एनिमल अब तो खैर पहले है क्योंकि अभी हम एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में हम जब भी वैक्सीनेशन करते हैं तो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है और ऐसा वैक्सीन जो कभी भी उसकी बॉडी ने उस चीज को एक्सपोज ना किया हो ठीक है तो हमारा बॉडी या ह्यूमन का बॉडी या फिर जो एनिमल का बॉडी है वो क्या लगता है कुछ टाइम ड्यूरेशन लेता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है वो टाइम ड्यूरेशन क्या है 3 to 10 days का जिसे हम बोलते हैं इंडक्शन पीरियड लेटेंट पीरियड ऑफ इंडक्शन ठीक है इंडक्शन पीरियड होता है जिसमें बॉडी ये करती है कुछ टाइम लेती है अपने ओन मीन्स अपने ओन इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है अंडरस्टूड सो दिस इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी कि जब हमने वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर किया एडमिनिस्टर करने के बाद चाहे हमने एनिमल में किया चाहे ह्यूमन में किया ठीक है एनिमल करने के एडमिनिस्टर करने के बाद हमारी जो ओन बॉडी होती है वो स्टिमुलेट होती है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ब्लड में ठीक है तो जो मीन्स स्टिमुलेशन फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या आपका लेटेंट पीरियड ऑफ इंडक्शन है जो कि 3 to 10 days का होता है ठीक है एज यू आर शोन इन दिस पिक्चर दिस इज योर लेटेंट पीरियड ठीक है ये 10 days इसके बाद आपका आईजीएम इंक्रीज हुआ ठीक है नाउ डिस्कस अनदर then the antibodies that is elicit first is entirely to of IgM type
अब इसके बाद जब स्टिमुलेट होने के बाद 3 to 10 डेज की ड्यूरेशन के बाद जब वो स्टिमुलेट होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है बॉडी में, आईजीएम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ये आईजीएम क्या करता है, द आईजीएम एंटीबॉडी टाइटर रेज steadily during the next 2 to 3 days or more, reach a peak level and then decline almost as fast as developed, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे आपने जो सीन दिस पिक्चर ना, 10 डेज तक का प्लेटिंग फेज था, 10 डेज के बाद आईजीएम इंक्रीज हुआ और एक पीक लेवल में गया, स्टेडी स्टेट में गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, स्टेडी स्टेट में जाने के लिए उसे 2 और 3 डेज का टाइम लिया, ठीक है। देन पीक लेवल में जाने के बाद वो डिक्लाइन हो गया, फास्टली वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, ओके। सी देन meanwhile if the antigenic stimulus was sufficient, ठीक है, अगर प्रॉपरली स्टिमुलेशन हुआ है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ हमारा इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट होना चाहिए था उतने अमाउंट में जो इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द डोज ऑफ योर ड्रग्स, ठीक है, रूट ऑफ योर ड्रग्स, ठीक है। जो ड्रग्स का जो डोज होता है, आपको फार्मा पढ़ा होगा कि जितना हम ड्रग्स का डोज देते हैं या फिर जिस रूट से देते हैं, वो दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं ड्रग्स के रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। तो वैसे अगर हम प्रॉपरली डोज से देंगे और प्रॉपर रूट यूज करेंगे, ठीक है, तो अगर प्रॉपर अमाउंट में हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है, सफिशिएंट अमाउंट में हुआ है, तो आईजीजी एंटीबॉडीज अपीयर इन द फ्यू डेज, कुछ टाइम के बाद जब आईजीएम पीक लेवल में जाने पर डिक्लाइन होता है, तो कुछ टाइम के बाद ही क्या होता है, आपका आईजीजी बॉडी में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब ये आईजीजी रीच अ पीक इन 7 to 10 days and then gradually fall over the period of week or month. See in this picture, like आईजीएम डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन होने के बाद प्रॉपरली स्टिमुलेशन हुआ है, तो आईजीजी रीच हुआ, ठीक है, और रीच करके उसने पीक लेवल को रीच किया, आईजीजी स्टिमुलेट हुआ, अपीयर हुआ और उसने एक पीक लेवल को रीच किया 7 to 10 डेज में, और फिर वो decline हो गया, understood, okay। Now the nature and the extent of the primary response to an antigen is determined by the number of the factor, okay। so जो primary response होता है, जो stimulate कर रहा है हमारी एंटीबॉडीज को, वो डिपेंड करता है, I told you the dose of the antigen, आपने कितना डोज ऑफ एंटीजन दिया है, उसका नेचर क्या है एंटीजन का, ठीक है, और कौन से रूट्स में आपने एडमिनिस्ट्रेट किया है उसे, understood, okay। then as well as is depend upon the nutritional status of the newborn baby, अगर हम newborn baby की बात कर रहे हैं, so it's depend upon the health status of the newborn baby, because if the baby are not suffering from the any kind of the disease condition, if the baby is a full term gestation week and the the baby weight also is normal, then the immune response sufficiently there stimulate the antibodies, okay। now an important outcome of the primary antigen change is education of the reticuloendothelial system of the body। तो आपको as you know the reticuloendothelial system जो सेल जंक्शन है आपको ऑल ओवर द बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, जब प्राइमरी एंटीजन एंटीजेनिक चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो वो रेटिकुलोएंडोथेलियम सिस्टम, जो बॉडी का जो रेटिकुलोएंडोथेलियम सिस्टम है, उसको एक एजुकेशन देता है, एक लर्निंग देता है, ठीक है, कि इस तरह से उसे क्या करना है, अपनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है, understood। so there is a production of what are known as the memory cell and the primary cell by the both B and T lymphocyte। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है, जो इम्यून सिस्टम प्रोडक्ट होता है, वो B और T lymphocyte प्रोड्यूस करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, इसे बोलते हैं मेमोरी सेल, ठीक है। हमारी मेमोरी में फिक्स रहता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हमें कोई भी डिजीज, किसी हम पर्टिकुलर वायरस के कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, फर्स्ट टाइम तो क्या होती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है, क्योंकि अभी तक हम एक्सपोज नहीं हुए थे, हम सेंसिटिव नहीं थे। अब जब एक बार सेंसिटिव हो जाते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारी मेमोरी सेल में फिक्स रहता है, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम उससे करते हैं, तो डायरेक्टली क्या होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, उसको टाइम लेता है स्टिमुलेट होने के लिए, ओके। Now these cells are responsible for the immunological memory
which become established after the immunization. तो immunization के बाद जब हम बेबी को इम्यूनाइज करते हैं तो जितनी भी जो भी हम उसे वैक्सीनेट कर रहे हैं वो सारी क्या करती है, एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप करती है बेबी में. ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब है कि जब हमारा बॉडी कोई फर्स्ट टाइम किसी पर्टिकुलर वैक्सीन से एक्सपोज हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, एंटीजन से एक्सपोज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है. तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, उसकी मेमोरी में फिक्स हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर नेक्स्ट टाइम वो किसी पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन एक्सपोज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं जैसे टिटेस के लिए या बीसीजी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए. ठीक है, तो अगर वो किसी पर्टिकुलर डिजीज से एक्सपोज होता है तो उसकी मेमोरी में फिक्स रहता है, जो उसकी इम्यून मेमोरी होती है, और वो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट क्या करता है, वर्क करता है और बॉडी में इन्फेक्शन को एंटर नहीं होने देता. ठीक है, In fact, the purpose of the immunization is to develop the immunological memory. Immunization का purpose ही होता है कि वो immunological memory को develop करे, immune को build up करे. build up करने का मतलब है उस memory को develop करे, so that कि जब भी हम किसी particular means infection के expose होते हैं, immediately हमारी body उसके against क्या करे, protection करे. ठीक है. Then the secondary booster is response. The response to a booster dose differ in the number of the way from the primary response. तो जो आपका बूस्टर डोज होती है उसका रिस्पॉन्स आपके प्राइमरी वैक्सीन के रिस्पॉन्स से डिफर होता है. फर्स्ट, शॉर्टर लेटेंट पीरियड. उसमें क्या था, 7 to 10 डेज में लेटेंट पीरियड था. ठीक है, तो हम जब एक बार वैक्सीन देने के बाद उसकी बूस्टर वैक्सीन देते हैं, आपने देखा होगा बहुत से वैक्सीन की बूस्टर वैक्सीन दी जाती है. तो बूस्टर वैक्सीन दी जाती है तो जो लेटेंट फेज होता है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है एज कंपेरिजन टू प्राइमरी रिस्पॉन्स के. प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी इज मोर रैपिड. और जितना शॉर्टन पीरियड होगा उतनी जल्दी क्या होगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस जल्दी होंगी. एंटीबॉडीज आर मोर अबंडेंट. ठीक है, वो क्या होती है, मोर अबंडेंट होती है, मींस मोर इफेक्टिव होती है. ठीक. Then secondary response in fourth is antibody response maintained is a higher level of the longer period of time. तो जो एंटीबॉडीज होती है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, मेंटेन रहता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, the antibodies tend to have a greater ability or capability to bind the antigen. तो जो एंटीजन्स जो एंटीबॉडीज जो अब मींस बूस्टर डोज के बाद जो प्रोड्यूस हुई है उनमें क्या होता है, ग्रेटर कैपेसिटी होती है कि वो एंटीजन को बाइंड कर सके. जो भी फॉरेन बॉडी एंटर हो रही है उसको अच्छे से कह सकते बाइंड कर सकते और बॉडी से उसे एक्सक्रीट आउट कर सके. ओके, now we will discuss about the vaccine. So what is a vaccine? The term vaccine derived from the vaccine equal to cow. Okay, so immunization agent is known as the vaccine. immunization एजेंट को कहा जाता है वैक्सीन कहा जाता है. ठीक है, जिसके थ्रू हम इम्यूनाइजेशन करते हैं मतलब. okay? So vaccine is an immunological substance designed to produce a specific protection against given diseases. Okay, तो पर्टिकुलर जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स करती है. ठीक है, किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू, दैट इज द इम्यूनाइजेशन. तो टाइप ऑफ वैक्सीन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन. द लाइव वैक्सीन, inactivated or the killed vaccine, subunit vaccine, toxoid vaccine, protein vaccine, recombinant protein vaccine, polysaccharide based vaccine, conjugated vaccine, and combination of vaccines. Okay, now the live vaccine. Antigen in vaccine is live but attenuated. Okay, जो लाइव वैक्सीन होती है ना उनमें जो एंटीजन होता है वो लाइव फॉर्म में होता है, लेकिन जो उसका फोर्स इफेक्ट और वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है. और since antigen are live they are multiply in the body after the administration of the stimulus is more. तो जैसे ही ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है बॉडी में आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, और वो क्या करते हैं, मोर स्टिमुलस करते हैं बॉडी में. ठीक है, बिकॉज द लाइव वैक्सीन जनरली गिवन इन अ सिंगल डोज. तो जनरली जो लाइव वैक्सीन होती है वो सिंगल डोज में ही दी जाती है. जैसे आपका बीसीजी हो गया, ओपीवी हो गया, एमएमआर हो गया, येलो फीवर हो गया, जिससे ओपीवी आपका रिपीट हो जाता है. नेक्स्ट आपका किल्ड वैक्सीन. जो किल्ड वैक्सीन होती है ऑर्गेनिज्म आर इनएक्टिवेट और किल्ड बाय हीट और केमिकल. ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये लाइव फॉर्म में नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये किल्ड हो जाते हैं हीट या केमिकल से. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व रखना पड़ता है. दे आर गिवन बाय द मल्टीपल डोजेस, और ये हम मल्टीपल डोजेस में देते हैं.
ठीक है, जैसे फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, ऐसे करके, ठीक है। इम्यूनिटी लास्ट शॉर्टर देन लाइव वैक्सीन, और जो किल वैक्सीन होती है उनकी इम्यूनिटी शॉर्ट होती है rather than द लाइव वैक्सीन की, ठीक है। जैसे आपका जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन है, एंटी रेबीज वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन है। तो ये क्या है आपकी, ये सारी वैक्सीन आपकी क्या है, किल्ड वैक्सीन है, जिनमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लाइव फॉर्म में नहीं होता, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और आप वो जनरली क्या होता है, किल हो जाता है हीट और केमिकल से, तो आपको इसे प्रिजर्व करके रखते हो, ठीक है। इन इम्यूनिटी जो काइंड ऑफ वैक्सीन होती है, इनकी हमें तो बूस्टर डोज, नॉट बूस्टर एक्चुअली, इनकी हमें मीन्स मोर देन 1 डोज लेनी होती है, मल्टीपल डोज हम इसकी लेते हैं, बिकॉज उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना इम्यूनिटी का, वो शॉर्टर होता है लाइव वैक्सीन से, ठीक है। नाउ टॉक्साइड, टॉक्साइड दे आर द मॉडिफाइड टॉक्सिन्स, जो होते हैं मॉडिफाइड टॉक्सिन्स होते हैं। मॉडिफाइड टॉक्सिन का एक्चुअली मतलब होता है कि रिड्यूस इम्यूनोलॉजिटी एंड रिड्यूस द बाइंडिंग ऑफ द वैस्कुलर एंडोथेलियम और वैस्कुलर, ठीक है। तो जो टॉक्साइड होते हैं वो मींस बाइंड नहीं होते हैं किसके साथ, एंडोथेलियम या फिर वैस्कुलर के साथ, ठीक है। टॉक्सिन आर द डिटॉक्सिकेटेड, ठीक है। डिटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है कि ये मेडिकली मेडिसिनली क्या होता है, रिमूव हो जाता है टॉक्सिन सब्सटेंस, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे मेडिसिन के थ्रू ये आउट हो जाते हैं, एंड दे आर रिक्वायर्ड इन मल्टीपल डोज, और जो टॉक्साइड होते हैं वो मल्टीपल डोज में रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि टॉक्साइड का देखो मीनिंग ये है, मॉडिफाइड टॉक्सिक होता है, जनरली क्या होता है ये रिड्यूस मीन्स ये बाइंड तो करते हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये जो भी वैस्कुलर या एंडोथेलियम सेल्स वगैरह होती हैं उनको का जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है वो रिड्यूस होती है, और ये मेडिसिनली रिमूव करते हैं टॉक्सिन सब्सटेंस को बॉडी से। जो भी टॉक्सिन सब्सटेंस बॉडी में है, जो हम भी जैसे हम वो लगाते हैं, टिटनेस लगाते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन सब्सटेंस होता है उसे मेडिसिनली रिमूव करता है, बट इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, लॉन्ग नहीं होता है। आपने देखा होगा टिटनेस तो 6 मंथ पे हम लोग एडवाइस करते हैं। तो टिटनेस टॉक्साइड या डिप्थीरिया टॉक्साइड है आपका। नेक्स्ट है माइलस्टोन इन वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन कब कब आई थी, कौन कौन से ईयर में आई थी, तो दीज आर द माइलस्टोन ऑफ द वैक्सीनेशन। इन दैट फर्स्ट है 1798 स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, 1885 में रेबीज वैक्सीन आया था, 1897 कोलरा वैक्सीन, 1921 बीसीजी वैक्सीन, 1923 diphtheria toxide, 1926 pertussis vaccine, 1927 tetanus toxide, 1937 influenza vaccine, 1935 yellow fever vaccine, इसे 17D बोलते हैं, 1949 मम्स वैक्सीन, 1954 सार्क पोलियो वैक्सीन, 1957 सिबिन लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन, 1960 measles vaccine, 1962 rubella vaccine, 1968 type C meningococcus vaccine, 1971 type A meningococcus vaccine, 1980 smallpox declare eradication from the world, okay, then 1980 में डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। 1981 मेनिंजोफिल पॉलीसेचराइड वैक्सीन ग्रुप A C by W135 combined monoimmune, 1982 hepatitis B vaccine, 1983 pneumococcal vaccine 23 valent, 1988 worldwide polio eradication initiative launched, कि 1988 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वाइड में पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम प्लान हुआ था। 1990 the vaccine adverse reporting system, a national program monitoring the safety of vaccine established. 1991 hepatitis B vaccine recommended to all the infant. 1991 acellular pertussis vaccine licensed for use in older children aged 15 months to 6 years. 1993 Japanese encephalitis vaccine. 2003 first adult immunization schedule introduced. 2004 periodicine, or the vaccine that combine the DTaP, IPV, hepatitis B vaccine into one shot is approved. Okay, IPV full form is the inactivated polio vaccine. Okay, 2006 the Gardasil, the first HPV hepatitis B vaccine is approved. Then Torexine. So 2006 the Gardasil, the first HPV. Okay, then vaccine is approved.
Then 2008 is Rotrasix 2 dose of rotavirus vaccine is approved. 2009 influenza A H1N1 vaccine approved. Okay, HPV, actually HPV is a human papillomavirus. Okay. Next is now it's a milestone in the immunization program in India. So in India में immunization program कब आया था? So first the expanded program on the immunization EPI इसे कहा गया था introduced after the smallpox eradication in 1978. 1978 में फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या होता है EPI. पहले ये था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं था, ये था पहले एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन. जो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन हो गया था उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया था EPI जिसमें BCG, DPT, OPV, टाइफॉइड और लिमिटेड मतलब ये वैक्सीन दी जाती थी और ये दी जाती थी लिमिटेड टू मेनली अर्बन एरियाज में. जितने भी अर्बन एरियाज थे मेनली वहां ये वैक्सीनेशन किया जाता था. ठीक है. 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नेम में कन्वर्ट हुआ. इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1985 में. ठीक है. एक्सपेंड टू एंटायर कंट्री और ऑल ओवर द कंट्री में ये स्टार्ट हुआ. इसमें मीजल्स ऐड कराया गया था 1985 में एंड क्लोज मॉनिटर ऑफ द लेस देन 1 ईयर ऑफ द एज ग्रुप. तो लेस देन 1 ईयर ऑफ द एज ग्रुप था उसको क्लोजली मॉनिटर किया गया था इम्यूनाइजेशन के लिए. ठीक है. 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन के अंडर में आया था. देन 1990 में विटामिन ए सप्लीमेंट इसमें ऐड हुआ था. 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम के थ्रू भी इम्यूनाइजेशन करवाया गया. देन 1995 में पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ. 1977 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH1 के अंडर इम्यूनाइजेशन कराया गया था. देन 2005 में NRHM के थ्रू अब इम्यूनाइजेशन करवाया गया था ऑल ओवर इंडिया में. ठीक है. नाउ द एक्सपेंडेड प्रोग्राम द इम्यूनाइजेशन. First, WHO launched a global immunization program known as the Expanded Program on Immunization, that is called the EPI, in May 1974. So the first WHO launched the immunization program in 1974 that we are calling the EPI, okay, Expanded Program on Immunization. जबकि ये इंडिया में कब आया था 1978 में और स्टार्ट हो गया था 1974 में after 4 years only. Then to protect all the children of the world against the 6 vaccine preventable disease, namely diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, tuberculosis, and measles by the year of 2000. So in 2000 में क्या हुआ था? Generally they are introducing that they are focusing on to protect the child in a 6 killer diseases like diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, tuberculosis. Okay. EPI was launched in India 1978. तो EPI launch हुआ था वो 1978 में launch हुआ था इंडिया में. 1974 में start हो गया था. ठीक है. Then universal immunization program in the Indian version, the universal immunization program was launched on November 1985. इंडिया में launch हुआ था universal immunization program is 1985 में November 1985. Okay. The National Health Policy aimed at achieving the universal immunization covering of all the eligible population by 1990. तो National Health Policy का aim क्या था कि जो universal immunization program है वो जितने भी eligible population है यानी कि जो हमने criteria बनाया है immunization का, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी eligible child आते हैं या pregnant ladies आती है वो सारे क्या हो सके cover हो सके. So this is the goal of the National Health Policy in 1990. So this is a National Immunization Program. This is the current latest National Immunization Program according to 2019 only. Okay? So in that I will divide it into 2 sections only. The vaccine and the when to give. The first one for the infant BCG at birth or as early as possible till 1 year of the age. BCG जनरली हम at birth देते हैं. अगर उस टाइम नहीं दिया तो as soon as possible you will give within a 1 year of age. Hepatitis B you will give as at the time of the birth, otherwise as soon as possible within 24 hours. Hepatitis B. Okay. BCG 1 year में दे सकते हो. Hepatitis B जो first step पर 24 hours में आपको देना है. OPV at the birth or at the as soon as possible within the first 15 days. OPV the oral polio vaccine. Okay. तो ये आपको देना होता है at birth time पे या फिर 15 days में after the birth. Okay. Then OPV 1, 2, 3. तो OPV का first dose 6 week में, second dose 10 week में और third dose 14 week में. ठीक है. 0 dose का मिला था at the time of birth और 15 days में.
Then rotavirus के first dose 6 weeks, second dose 10 week और third dose 14 week. Pentavalent first dose 6 weeks, second dose 10 week, third dose 14 week. Fractional IPV. IPV is an inactivate polio vaccine. Okay. So fractional IV first dose is at 6 week and second dose is 14 week. Measles and rubella first 9 completed month, 9 months complete होने के बाद आपको measles and rubella देना है और 24 month तक दे सकते हो. Given up to 5 year if not receive in 9 to 12 month. और 9 to 12 month के बीच में 9 month complete होने के बाद हम ये देते हैं. तो 9 to 12 month के बीच में अगर आपने नहीं लिया है तो up to 5 year तक आप कहीं भी दे सकते हो. Japanese encephalitis first is 9 to 12 month. Okay. So after completion of the 9 month only you will give the Japanese encephalitis vaccine. विटामिन ए फर्स्ट डोज एट 9 मंथ विद मीजल्स. तो मीजल्स के साथ विटामिन ए का फर्स्ट डोज देते हैं. ठीक है. फॉर द चिल्ड्रंस डीपीटी बूस्टर 16 to 24 month, OPV booster 16 to 24 month, measles and rubella 2. It's okay because already first will given 9 to 12 month or up to the 5 year. Measles the 2 in 16 to 24 months. Japanese encephalitis is 16 to 24 month with DPT and OPV booster. Vitamin A 16 month with DPT OPV booster. Then one dose every 6 months up to the age of 5 year. DPT booster 5 to 6 year. TT 10 year and the 16 year. So this is your national immunization program for the. This is for the infant and this is for the children. Okay. Next one, the national immunization schedule for the pregnant woman is TT1 early in pregnancy. Generally we are advised to mother after the completion of in a first trimester also they will give and yeah after the first trimester also they will give means वो ले सकती है. Then TT2 is 4 week after TT 4 week after TT1. So for example generally क्या होती है मदर जब रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो फर्स्ट की डोज ले ले अदरवाइज वो फर्स्ट trimester यानी 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी डोज ले सकती है. ठीक है. और फर्स्ट डोज उसने जब भी लिया हो मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद उसे लेना ही है. अगर उसने उससे पहले टीटी डोज दिया तो बैलेंस फाइन नहीं तो उसे उस टाइम पे लेना है. देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जब फर्स्ट डोज ले ले उसके 4 वीक के बाद यानी 1 मंथ के बाद को अंदर टीटी की डोज देनी टीटी 2 की डोज. ओके. टीटी बूस्टर एक्चुअली इज द रिसीव टीटी 2 डोज इन द प्रेग्नेंट विद इन अ लास्ट ईयर. For example, again mother will not maintaining the 3-year gap in between the two child. The first child age is 1.5 year. A mother again conceive another child. Okay, so that time you will that time actually now that time you will give a booster dose. Okay, if after 3 years then this is mandatory to give TT1 and TT2 both dose. In between 3 year में आती है तो आप उसे booster dose दे सकते हो. So thank you so much. I hope you understand this one. If you have any doubt, you will free to us. Thank you.